So we had a debt of 7 lakhs. It uh, बढ़ बढ़ के वो 21 लाख हो गया. So for me, he's just another fighter. He's just on my way towards my goal. So 1 month prior to the fight, I had a breakup. Like I had to prove a lot of things to myself, and I think that breakup, gave me the fuel. ये तो सुल्तान वाला स्टोरी हो गया. हाय, माय नेम इज़ माधव. मैं काफ़ी सालों से आईटी में वर्क कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे नेक में काफ़ी पेन होता था और मैं बहुत परेशान था इस वजह से. फिर मुझे सेटअप राइट पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला और इसमें वो आप किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो. और जब से मैंने इसको यूज़ किया है, मेरे पोस्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है और मैं पहले से बहुत अच्छे से वर्क कर पा रहा हूँ और मैं डेफिनेटली सबको रिकमेंड करना चाहूँगा. It's always a good platform for me to be here. Actually, I enjoy being here more than any other podcast. I enjoy it. These are my subjects basically, and meeting such great athletes, especially coming from India, I just love to converse with them. So Niranjan, congratulations! I've seen your fights. I've seen your preparations. I think you are going to go very far in this particular sport, and I wish you all the luck. Thank you so much, Vispy and Ritvich. So Niranjan, so it's all about कि आपने दागिस्तानी फाइटर को हराया. ये एक हेडलाइंस बन चुकी. Mm-hmm. सो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज योर साइकी बिहाइंड इट. क्या एक्चुअली वो दागिस्तानी फाइटर है, ऐसा आपको सामने से लग रहा था फाइट के पहले, या इट्स जस्ट अनदर फाइटर फॉर यू? For me, क्या लग I mean, सब prepare कर रहे हैं to reach to the top, and I think I'm also one of them. So for me, he's just another fighter. He's just, on my way towards my goal. So to me, it's not a Dagestani fighter. To me, he's just a fighter, my opponent. After that, we are friends. करेक्ट, But yeah, करेक्ट, करेक्ट. so it's like that. Yeah, so I think all the viewers watching this podcast would understand कि एक एथलीट के लिए वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे बैकग्राउंड है, उससे कोई लेना देना नहीं है. जी, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो जी, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, राइट? जी. सो प्रिपरेशन कैसी रही थी ये फाइट के पहले? Well, एनीथिंग एनीथिंग स्पेशल? I mean, मेरा जो अभी दिसंबर में फाइट हुआ था, जो मुराद के साथ हुआ था, उससे पहले आई थिंक जस्ट 1 month prior to the fight I had a breakup, and yeah, yeah. ये तो सुल्तान वाला स्टोरी हो गया. Well, हाँ? I don't know, but yeah. Hmm. So उसके बाद जो I mean, like I had to prove a lot of things to myself, and I think that breakup, gave me the fuel to work more efficiently and to show, what I have to the people. I think it's yeah like that. Like I was not able to, give proper time to her, and Yeah. that I mean, small fight started, and then eventually we, had to take. आई थिंक मेजोरिटी ऑफ एथलीट्स इन एनी स्पोर्ट, उनकी Mhm. ये स्टोरी रहती है. बहुत कम होते हैं मेरे जैसे लकी जिनको ये प्रॉब्लम नहीं मिल रहा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वो सपोर्ट चाहिए Mhm. और वो माइंडसेट चाहिए जो आपको और मोटिवेट करे, आपको पुल डाउन नहीं करे. Mhm. क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप मिलते नहीं हो, आप फोन नहीं करते हो, ये सब होने के बजाय और मोटिवेट करना चाहिए. वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो एथलीट क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग एक पार्टनर की माइंडसेट में आना चाहिए. अगर वो आ गया ना, Mhm. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन. पर वो डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड. Yeah. So I wish Niranjan would find that particular kind of partner in life again. So Thank you. I wish. But अभी के लिए तो I'm in love with the sport. I'm in love with great, my goal. So great, very good, very good. So Niranjan, as a childhood, no, in your as a childhood story, mhm. you always wanted to be a fighter kind of, कि आपको लाइफ ने ये फाइटर बना दिया है? क्या Uh, लगता है? so I was a very notorious child Okay. since I was a kid. I was very notorious. मम्मी पापा का बात नहीं मानता था. I used to do what I like, what I wanted to. So I grew up like Hmm. that, and I think that attitude of me, put me into this sport. मतलब I used to, play kabaddi Okay. state inter school में
और स्टेट पे रिप्रेजेंट करता था मैं इन मणिपुर. मतलब स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था, बट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आई वाज न्यू. सो कॉम्बैट स्पोर्ट्स मैंने स्टार्ट किया था 2019 को, जुलाई में, टू बी प्रिसाइज, व्हेन आई वाज इन माय थर्ड फोर्थ सेमेस्टर. Oh, okay. या सो कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट किया था मैंने. So I have two questions coming out of your answer. श्योर. आपने बोला कि आप मम्मी पापा की बात नहीं मानते थे. हाँ. आई मीन मानता था, बट लाइक अच्छा, okay. यू नो. Uh, so see, lot of youth are going to follow you. Lot of youth are going to watch you. What is your message to the growing children in India as far as kids who want to join any sport? So I want to just convey something before, or correct something before we move on. Thing is, मम्मी पापा का बात जो नहीं मानता था का बात जो है, like टीन एज पे क्या करते हैं, we are rebellious. We don't want to Correct. listen to anyone. So that happens. But I never left my parents. I mean, I used to listen to it. I don't, show that I'm doing that, but I used to do what they say. उनको Right. दिखाता नहीं था, but I used to do. Okay. So मानना चाहिए हमेशा, जो अगर आपके लिए कोई भी नहीं है, वो लोग रहेंगे. वो लोग रहेंगे. Your mom will be Right. there, your dad will be there. My mom was Yeah. there, my dad was there. So never, leave your parents. And उनको अभी क्या लगता है? They're happy. They're Very nice. they're very proud of me, and that's what I wanted to do. My dad, used to use a lot of reverse psychology, कह के कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. So उनको प्रूव करने का जो अंदर से जो फीलिंग आता है ना, उससे मैं और ताकतवर बनता गया. Great. Negative motivation. जी. Very good. Very good. And the other question जो मेरे दिमाग में, आपने मणिपुर का नाम लिया. जी. So I have my own Manipur Kudo Federation there. जो स्टेट का पूरा कूडो फेडरेशन हमारा जो है मणिपुर के, वहां से आता है. जी. And they get lot of support from government people. मणिपुर इज वन स्टेट इन इंडिया जो एथलीट्स के लिए, कोई भी स्पोर्ट में, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं. अलग अलग स्कीम्स हैं. जी. आपको क्या लगता है उनके लिए? जो स्पोर्ट्स ओलंपिक के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके लिए आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम गवर्नमेंट. और कोई भी, इफ दे गेट अ मेडल, इफ दे गो अब्रॉड, इंटरनेशनल खेल के आते हैं, या फिर उनको कोई भी मेडल मिलता है, देन गवर्नमेंट गिव्स लाइक रिजर्व देम अ सीट फॉर जॉब. तो there are cash prizes also. yes, certainly there are, but unfortunately हमारे जो स्पोर्ट है MMA, उसमें मतलब सपोर्ट ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट से डायरेक्टली फंडेड होता है, बट पीपल हु हैव सीन मी ट्रेन, who believe in me, who support me, they help. उन्होंने मदद किया है बहुत. मेरा जो गांव वाले हैं, बहुत हेल्प किया है, बट गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं मिला है. टू बी ऑनेस्ट. नहीं, क्योंकि रिकग्निशन नहीं मिला है ना अभी. Yes. ये MMA को अभी तक जी. इंडिया में रिकग्निशन मिला नहीं है. जी. एंड द अदर प्रॉब्लम इज ऑलरेडी के बहुत सारे एसोसिएशन बन चुके हैं अभी. जी, बहुत सारे. प्रो लीग्स चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या, गली कूचे में उनके नई अलग खुद की लीग बना देते हैं. जी जी, करेक्ट. सो दैट इज हाउ दे आर काइंड ऑफ चीटिंग दिस स्पोर्ट. या. सो इट्स अ वेरी वेरी, सो आई फॉलो MMA. ओके, बट ये जो छोटी छोटी लीग्स बनाने वाले हैं ना, दे आर काइंड ऑफ चीटिंग पीपल, दे आर चीटिंग एथलीट्स, बिकॉज एथलीट्स को क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए. करेक्ट. सो अभी इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में से एथलीट्स निकल के आ रहे हैं. सो करंटली आई वाज इन टाइगर मुआय थाई ट्रेनिंग थाईलैंड में, व्हिच वी गो एवरी ईयर. और बहुत सारे इंडियंस वहां पे ट्रेन कर रहे थे. या. एंड आई एम जस्ट एंड अभी करीबन लास्ट हम लोग 7-8 साल से जा रहे हैं, and that quality is improving. The athletes are really fine tuning themselves. खाली सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ये छोटी छोटी लीग में जाके बेचारे खेलते हैं कि उनका कार्ड इंप्रूव हो and they can show to somebody else. Correct. So I want you to advise people जो भी स्पेशली MMA लीग्स में खेलते हैं, कौन सी लीग में खेलना चाहिए और कौन से में नहीं खेलना चाहिए. स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है.
मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले एक जो आपका मैनेजर होता है, जो आपका जो करियर मैनेज करता है एमएमए में, वो बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको एक अच्छा मैनेजर चाहिए जो गेम को समझे। नहीं तो अगर मैनेजर नहीं मिल रहा है, आपको समझना चाहिए पहले। वो डैमेजर हो जाएगा। या अदरवाइज आपका करियर डाउनफॉल में जाएगा। हम्म। सो बेसिकली अभी मैं 2 महीने से मैं कोई फाइट नहीं ले रहा था। आई वॉज नॉट इन टू ट्रेनिंग प्रॉपरली। सो मेरे को आया है, लाइक देर आर 4 to 5 promotions that have approached me not to fight, but I'm not taking the call because अगर मैं prepared नहीं हूँ, then it doesn't make any sense fighting. परफेक्ट, दैट इज द राइट डिसीजन। So जो आपको गाइड करता है मैनेजर, बेसिकली मेरे को भी गाइड करता है कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सो वी डिस्कस एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। So can you throw some more light upon like who these managers are? वो कैसे मिल सकते हैं बच्चों को या एथलीट्स को? उनकी क्या फीस रहती है? उनके क्या टर्म रहते हैं? See, because I have seen athletes into MMA training and they don't know anything about this manager roles करेक्ट and करेक्ट। nothing. मैं अपने आप को बहुत लकी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बस अपने काम पे विश्वास किया। आई ट्रस्टेड माई वर्क। आई पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, पीपल वेर सीइंग माई वर्क, एंड Yeah. आई थिंक वो देख के लोग आते हैं, आपको बात करते हैं। देन इंटरेक्शन के बाद आप समझ में आ जाएगा कि कैसा बंदा है। सो मैंने ढूंढ के नहीं मिला है। व्हाट वो आई खुद ही आएंगे। सो या इफ यू आर गुड, आई Yeah. थिंक पीपल विल अप्रोच यू। But Niranjan, let me be very, very honest with you again. Because you come from that particular region, you know, मणिपुर और ये ईस्ट साइड से, वहां पे स्पोर्ट्स का कल्चर वैसा है कि देर आर स्काउट्स लुकिंग फॉर एथलीट्स। इफ यू ओके। गो टू अदर साइड, यू नो, आप गुजरात साइड आ जाओ या वेस्टर्न साइड आ जाओ, यहाँ पे कोई स्काउटिंग नहीं करता है। देयर इज नो वन टू इवन लुक एट द रील्स। सो ऑनेस्टली तो मेरी और ऋत्विज के बीच में ये डिस्कशन बहुत बार होती है, यू नो। सो नॉर्थ इंडिया के एथलीट्स या ईस्टर्न साइड के एथलीट्स जब रील डालते हैं, उनके व्यूज आते हैं बिकॉज पीपल रियली वांट टू सी कि क्या करते हैं वो ट्रेनिंग में, कैसे करते हैं। और बाकी के एरियाज के जो एथलीट्स है वो कितना भी रील डालते हैं, वैसी रील्स चलती नहीं है। वो खाने पीने की रील ही चलती है। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक सो लाइक मैं भी मणिपुर से कुछ नहीं मिला था मेरे को भी। So I think you need to move somewhere where it is popular. yeah, That is the correct. first thing you have to do. So where did you move? I moved to Bangalore. I've been here Oh, since perfect, 3.5 years. Yeah. So I think all the athletes watching this should understand कि उनको कहाँ जाना चाहिए। I mean Mumbai, Pune, Yeah, or yeah, Bangalore or Delhi, Delhi, correct. Gurgaon. So let me give this clarity. Kudo is a sport. It comes under Sports Act of Indian government. Mm-hmm. MMA is not a sport Yeah, it's as far as Indian government is concerned. mm-hmm. So National Sports Federation recognition मिलता है MYA से और साई से, Mm-hmm. तभी आप एक स्पोर्ट लेजिटिमेट स्पोर्ट कहलाते हो इंडिया में। Mm-hmm. नाउ एज अ स्पोर्ट इज कंसर्न, आपको बहुत सारे ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, नेशनल्स वो सब खेलने होते हैं, देन इंटरनेशनल लाइक एशिया, यूरेशिया, वर्ल्ड कप ये सब होता है। Mm-hmm. अभी तक कूडो, सो मैं इतना बोल सकता हूँ, कूडो इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन इंडिया एज फार एज मार्शल आर्ट इज कंसर्न। Mm-hmm. सो अभी वो ओलंपिक स्पोर्ट्स में रिकग्निशन नहीं आया है, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम एंड वेरी सून इंडिया आईओए में भी कूडो आ जाएगा। सो द ओनली प्रॉब्लम इज, so when you fight in MMA cage, the same fight is replicated in Kudo, but Okay. as a sport, उसमें आपको गियर्स पहनने होते हैं, हेड गार्ड पहनना होता है, यू कैन नॉट हिट ऑन द जॉइंट। जैसे कि आप सीधा कंसेत्सुगिरी घुटने पे मारते हो एमएमए में, वैसे आप नहीं मार सकते। So there are certain rules and regulations as per Sports Act. Mm-hmm. That is the only difference. Otherwise, the fights are almost same. The training is almost same. You know, you punch, you kick, you throw, go to the ground and pound, everything is there. So let us not combine these two factors. Mm-hmm. So let MMA be MMA and let Yeah. Kudo be MMA. It's a different thing. Kudo is done with gi, Oh. uniform के साथ। MMA is not done with gi. Yeah. Yeah.
एंड अगेन इंडिया में दूसरा प्रॉब्लम है, नॉट इंडिया बट एज पर स्पोर्ट्स एक्ट, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म. One man, one federation, one person, one sport. So probably now you understand, Ritvij. You spoken up to me about it कि जिदान क्यों एमएमए नहीं खेल रहा है मेरा बेटा. So he is in Kudo and he represents India in Kudo. He cannot be doing any other sport. Mm-hmm. Yes. Yes, and government is very very strict about it now. So let me mention from Nirajan's perspective. So if you come from Bangalore or if you come from Manipur, Mm-hmm. दोनों recognized state है कूडो के लिए. तो आपको स्टेट विन पे कैश प्राइजेस, नेशनल विन पे कैश प्राइजेस, recognition वो सब मिलेगा. Plus Mm-hmm. you get sports quota reservations in any government job. Yeah. Okay. So, for example, if you are taken up by Manipur Police, you just have to play sports. Mm-hmm. If you're taken up by Income Tax Department of India, you just have to play sports. Mm-hmm. Plus, you get your salaries from Income Tax Department or whatever the department is. Mm-hmm. So, yes, the government schemes are exceptionally good. The only thing is we need to take it well. Yes, for Kudo only. MMA के लिए नहीं है. Because MMA के MMA लिए is नहीं है. not yet recognized. Yeah. MMA is also a latest entrant in India. मैं इतना बोलूंगा, बट कहीं ना कहीं उसकी रिकग्निशन का प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ एसोसिएशन प्रॉब्लम्स, जो हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स में देखा है. Mm-hmm. बट इतना बोल सकता हूँ कि लेटेस्ट अभी जो मनसुख मांडविया जी के लीडरशिप में अभी जो डिसीजंस आ रहे हैं, सो वी सीन दैट कराटे इज डी रिकग्नाइज. ओके, बट नाउ कराटे विल बी रेगुलराइज्ड because government authority will be sitting in that association and they will be regulating the sport. Something like that. Mm-hmm. So I don't know if MMA भी ऐसा हो जाए, तो then the athletes will get a good chance. Let me ask you another question. Mm-hmm. कि MMA अभी मतलब सबको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पैसा है, certain athletes worldwide have made huge money out of MMA fights. Mm-hmm. But tell me the dark side about MMA. जो actual reality है, जो एक्चुअली सब एथलीट्स को पता होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग एमएमए. It's Okay, it's MMA is a going to good be sport. really hard. It's going to be really hard, It's a very big challenge if you take up MMA as a career. I think it's for everywhere, not just Yeah, for India. exactly. But you have to work hard and smart so that you stand out in front of, from the others. I think that's very important thing to do. And you gotta have connections. You gotta know how to speak. You gotta know how to connect with people, interact with Yeah. them, and ask. Keep asking. Like I don't think that it's like it keeps me down from someone if I ask them We something. need to ask. Yes, Yeah. yes. So I think if you want to take MMA as a career, you need to really, really sacrifice on everything, because sometimes you'll have money, sometimes you'll not have, sometimes there will be people for you, sometimes there'll be not. So you got to be prepared for that. And one point which you mentioned earlier कि मैनेजर होना चाहिए, वो एडवाइसेस आपको आनी चाहिए, Yes. तब आप एक अच्छी फाइट खेल सकोगे. I Yes. understand that. Very nice. So my manager, he's doing, like, pursuing sports. This one, what do you call? So he's a lawyer, first of all, and now he's doing sports management program. He's in Spain right now. Yeah. Okay. So Okay. I'm very lucky to meet him. Like, that's why I said I'm lucky. Very good, very good. No, I think this should help. No, after listening to your podcast, a lot of athletes will start searching for such managers. Mm-mm. At least they will start sending messages to such managers. I mean, please ask. That- If you need something, Yeah. ask. Some or the other Yeah. day, the guys will reply. Yeah, it's not just about your training. You need to be smart enough to talk about and ask about, and Yes. You need to speak out. कि Yes. क्या चाहिए, जी बोलना तो पड़ेगा. जी. Great, great. So, अभी जैसे आपने बताया कि it's going to be really tough, and I'm sure अब तक की आपकी जर्नी में बहुत सारे डाउन्स आए होंगे. अप्स तो बहुत हमने सारे. देख लिए हैं, but डाउन्स आए होंगे. बहुत सारे. So, have you ever thought of quitting the sport?
वो मेजर्स, और जब आपने ऐसा सोचा होगा तो वो स्ट्रगल क्या थी? 2020 कोविड, उस टाइम पे ओके। मैं छोड़ने वाला था बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू लॉसेस फॉर 2 years. लॉसेस एज इन फाइनेंशियली, घर पे, मतलब there's a lot of story. But so No, Niranjan, I'm just mentioning this. mhm, It's of course your story. If only you want to share, mhm, then only share. But शायद आपकी स्टोरी शेयर करने से बहुत सारे यंग एथलीट्स जो आना चाहते हैं ऊपर, उनको मोटिवेशन मिल सकता है। जी जी। तो कोविड का टाइम था, मैं कॉलेज पे था, लॉकडाउन अचानक से हो गया, है टू कम बैक टू होम। मैं असम पे अपना डिग्री कर रहा था, सिलचर, वहाँ पे। ओके। So ओके। my ओके। home is just 50 kilometers away from there. So I live in a ओके। border, Manipur border. ओके। So घर पे मम्मी पापा नहीं कमाते थे बिकॉज पापा का रिटायरमेंट हो गया था। एंड उनका रिटायरमेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। ओ। सो ही वाज वर्किंग इन यूएई। तो उसके ओके। बाद आई थिंक वी हैड सम लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स। तो ओके। कोविड में वी वर नॉट एबल टू पे एनीथिंग एंड द इंटरेस्ट केप्ट increasing. So we had a debt of 7 lakhs. It uh, भर भर के वो 21 लाख हो गया। इंटरेस्ट के साथ? यस, द इंटरेस्ट, यस। हम्म। सो उस टाइम ओके। पे मतलब आई थॉट आई जस्ट क्विट द ट्रेनिंग एंड go outside, support the family. Then my coach, Muay Thai coach, Roshan Irom from Silchar, he called me to his house, like gave me a place to stay. ओ। Then I was able to forget while I was training about my condition, about my home condition. But at night I used to cry every day. I think it was almost for 6 months. I always, because I was not able to do anything. I was in college. या I was not बिकॉज earning मैं समझ anything. सकता हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस उधर घर पे ही रहता होगा। जी, बहुत ज़्यादा अभी भी है। ऐसा नहीं है, बट अभी ठीक हो गया थोड़ा बिकॉज बेंगलोर में हूँ, कुछ कमा रहा हूँ, घर पे भेज रहा हूँ। तो सो या दैट ओ। हैपेंड, एंड दैट टाइम आई थॉट ऑफ क्विटिंग द स्पोर्ट because he called me and made me stay, and kept me in that surrounding where every day was training. तो वो हेल्प आई किया थिंक to resume आई the sport. थिंक सैल्यूट टू योर कोच। आई थिंक ही Yes, शुड बी अपलॉडेड वेल। ऐसे yes, कोचेस इंडिया में चाहिए हमको, जी जो एथलीट को सपोर्ट करे। जी एंड आई हैव सीन वेरी फ्यू कोचेस जो ऐसा करते हैं। जी। सो प्लीज कन्वे माय पर्सनल रिगार्ड्स टू Sure. हिम। Sure. I hope see the video once it's uploaded. So I'm gonna या send सो him. आई सैल्यूट हिम। Yeah. थैंक यू सो मच कि आपको हेल्प की, एंड दैट इज हाउ वी गेट सच अ ग्रेट एथलीट इन जी। एमएमए राइट नाउ। आपने शायद मेरी एक रील देखी होगी, करीबन अराउंड 15-20 डेज अगो। मैंने उसमें मेंशन किया था कि ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, जो करीबन 100-200 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बट दे डोंट नो प्रॉपर न्यूट्रिशन, Mhm. कि उनको एवेन्यूज नहीं है कि कैसे उनको कन्वर्ट किया जाए या उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल के टीचर्स, वो रोज 200-300 बच्चों को पढ़ाते हैं। दे हैव पर्सनल कनेक्ट विद दोस किड्स एंड दोस फैमिलीज। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट दैट किड। सेम इज द स्टोरी विद ऑल दीज एथलीट्स। प्रॉब्लम इन इंडिया इज कि ये एथलीट्स जब तक फिजिकली वो परफॉर्म करते हैं, तब तक उनको कुछ ना कुछ इनकम वो स्पोर्ट्स से आएगी। उसके बाद एकदम से ड्रॉप हो जाएगा इनकम। सो ये मुझे पॉइंट कहीं ना कहीं चुभ रहा है, एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम कमिंग अप विद अ बिग प्लान फॉर ऑल दीज एथलीट्स। सो आई डोंट वांट, मैं चाहता हूं कि ये सब एथलीट्स, ऐसे ही एथलीट्स जो हर कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, वो लाइफ टाइम तक यही स्पोर्ट सिखाए बच्चों को, यही स्पोर्ट पे प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, ये स्पोर्ट को आगे लेके जाए। एंड दैट इज हाउ वी विल टैप देयर नॉलेज। नहीं तो उनका नॉलेज वेस्ट जा रहा है, उनको उनको इनकम नहीं, यार बेचारे कुछ ना कुछ और करते हैं। Mhm. कितनी बार हमने सुना है कि मेडल बेच के उनको घर चलाना पड़ता है। कितनी बार हमने सुना है कि
वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं या नेशनल चैंपियंस है, वो एक लारी लेके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बेच रहे हैं। सो ये सब आई थिंक इफ एट ऑल माय प्लान वर्क्स, आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट आई एम कमिंग अप विथ। प्लान रेडी हो चुका है। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए उसके ऊपर, बट प्लान पूरा रेडी है। इट्स जस्ट अ मोमेंट ऑफ 5-6 days, आई एम कमिंग अप विद अ प्लान। That's great. That's great. Yeah. The only reason is I want that fraternity to grow. मुझे वो स्पोर्ट ऊपर लेके जाना है, बिकॉज आज हम भारत में देख रहे हैं कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो जस्ट इमेजिन ऑल दीज एथलीट्स, अगर उनकी फ्रेटर्निटी में ट्रेनिंग देते जाए, उनकी फ्रेटर्निटी में उनको इनकम मिलता जाए, तो वो और मोटिवेशन के साथ सिखाते रहेंगे, और मोटिवेशन के साथ बच्चों को न्यूट्रिशन देंगे, सप्लीमेंट देंगे, ट्रेनिंग Correct. देंगे, तो ऑटोमेटिकली अपना देश हेल्दी हो जाएगा। Correct. सो इट्स नॉट अबाउट कि वो आगे जाके करियर क्या करे, वो स्पोर्ट चुन सकते नहीं भी चुन सकते, बट एटलीस्ट दे बिकम हेल्दी। दैट इज माई मेजर रीजन। सी निरंजन, फॉर आई एम नॉट श्योर अबाउट कि आपको न्यूट्रिशन आता है कि नहीं, बट इवन इफ नहीं आता है तो यू नो कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। Correct. आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस में दूंगा, आपको कोर्स करा दूंगा, Mm-hmm. आपको मैं समझाऊंगा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हैंडल करते हैं, Mm-hmm. ताकि आप और क्लाइंट्स लेके आ सको अपने लिए। Mm-hmm. So this will be the story with all athletes. So आप आपके अंडर कितने लोगों को तैयार कर सकते हो अगर वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहे, Mm-hmm. या फिर आप अपने अंदर कितने लोगों को हेल्दी बना सकते हो। दैट इज द मेन पर्सपेक्टिव। यू नो दैट वी हैव कम अप विद अ सप्लीमेंट कंपनी इन इंडिया नाउ। Okay, the company is, yeah, it's a greater purpose of life. So Niranjan, we are coming up with a supplement company, Mm-hmm. already launched हो चुकी है। So there's a 20 years of research behind that particular company. Wow. 20 साल हमने सिर्फ रिसर्च किया। It's 100% plant-based supplements Mm-hmm. with measurable results. Measurable results मतलब मैं आपको बोलूं कि हमारा सुपर ग्रीन्स आप लो, Mm-hmm. तो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप जब ब्लड रिपोर्ट निकालो आपका, तो उसमें आपके B12, विटामिन ए, विटामिन ऑल डिफरेंट कैटेगरी बायोमार्कर्स आपके इंप्रूव हो जाने चाहिए। Mm-hmm. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेजरेबल रिजल्ट के साथ अगर आप HB1AC घटाने की मेरे पास सप्लीमेंट ले रहे हो, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने के बाद आपके बायोमार्कर्स में दिखना चाहिए कि यस आपका घट रहा है। Mm-hmm. So I'm so sure about it because we've researched so well on it. Plus, it's 100% clean label company, मतलब नो साइड इफेक्ट्स। आज आप कोई भी सप्लीमेंट लो, हम बोलते हैं कि सिंथेटिक है, इससे नुकसान हो जाता है। Mm-hmm. मैं बोलता हूं कि हमारी सप्लीमेंट आपके घर में पड़ी है और एक छोटा सा बच्चा आके भूल से वो 15-20 गोली एक साथ खा रहे हैं, उसको कुछ नहीं होगा। सो क्लीन लेबल का मतलब कि इट हैज टू कम विथ वन पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के नो साइड इफेक्ट्स। Mm-hmm. Now, another perspective of clean label is no preservatives, no additives, no additional sugars, not even binding agents. आप जो कैप्सूल्स टैबलेट्स पे वो कोटिंग होता है ना, वो बाइंडर्स होते हैं, Mm-hmm. वो भी नहीं है। इट्स 100% नेचुरल। सो आई वांट के ऐसे एथलीट्स को हम अफिलिएट्स बनाए। अफिलिएट मतलब दे बिकम द पार्टनर टू दैट कंपनी, Mm-hmm. और वो लोग खुद ले सकते हैं सप्लीमेंट्स, या जैसे कि मैंने जो प्लान बनाया है उसके अंदर जितने भी वो क्लाइंट्स को हैंडल कर सके या हेल्दी बना सके, दैट इज द मेन आइडिया। सो Mm-hmm. दैट्स हाउ दे स्टार्ट द इनकम। नहीं, अब ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि ये पैसे लेके वो प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर क्यों लेंगे वो, Mm-hmm. और क्यों बात मानेंगे उनकी। रादर पीपल लाइक निरंजन या पीपल जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या कोई ना कोई हेल्थ एक्टिविटी में है या हेल्थ की इंडस्ट्री में है, उनकी बात ज्यादा मानेंगे। Very important. It's the most important thing for the sport. I think that's you are working extra hard, not even hard, extra hard, and you need fuel in your body and the right fuel. You cannot get all those from your balanced diet. And I mean, मैं इंडिया में रहता हूँ. Impossible. Our diet is only carbohydrates and fats. So Yeah, I that don't is why we are diabetic capital of the world. exactly. Morning we are eating sugar. Afternoon we are eating sugar. Dinner we are eating sugar.
कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, Yeah, ग्लूकोज बन yeah. जाता है, शुगर बन जाता है, इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ. The problem is कि एथलीट्स के लिए तो इट इज 100% कंपल्शन टू हैव सप्लीमेंट्स. मैं तो ये बोलना चाहता यस, हूँ कि नॉर्मल लोग जो कुछ नहीं करते हैं, शायद ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी सप्लीमेंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डोंट गेट दोस काइंड्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करेक्ट, फ्रॉम आवर फूड सोर्सेस. करेक्ट. भले डॉक्टर जितना भी आपको बोल ले कि आपको नेचुरल सोर्सेज से, खाने पीने से ही आपको ये सब लेना है, पर कहाँ से लेके आएंगे? नहीं, इट्स नॉट अबाउट इंडियन किचन, ऑनेस्टली. आप कहीं भी जाओ, तो सप्लीमेंट्स में अभी तक इंडिया में अवर्जन है बहुत लोगों को. इफ यू गो टू वेस्टर्न साइड, उनको कोई अवर्जन नहीं है, तो दे आर टेकिंग सप्लीमेंट्स सिंस मेनी इयर्स नाउ. एग्जैक्टली. There are athletes, there are people who are absolutely natural, but they look amazing. They या. have naturally good physics, पर बहुत मेहनत भी करते हैं. कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं. कितने सालों से डिसिप्लिन लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं लोग. बट वो अच्छी बॉडी है, स्टेरॉइड ही लिया होगा. अच्छी बॉडी है, जूसेस पे ही होगा. सो दैट्स अ रॉन्ग मेंटालिटी. और मैं जब बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में सप्लीमेंट्स का कल्चर बहुत पुराना है, या वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ऑलरेडी बहुत फिट है, बिकॉज उनके स्कूल सब्जेक्ट्स में न्यूट्रिशन का पोर्शन सिखाया जाता है, अपने यहाँ नहीं है. ये मेजर ड्रॉबैक है. स्कूल डेज से आप कोई भी वेस्टर्न कंट्री चले जाओ, आपको लोग सुबह एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे. स्पोर्ट्स. अपने यहाँ दिख रहे हैं, ऑनेस्टली अपने यहाँ दिखते हैं सुबह, बट व्हाट परसेंटेज? इट इज नथिंग. दैट इज द मेजर कंसर्न नाउ. वी आर गोइंग ओबीज, वी आर गोइंग डायबिटिक, एंड द हार्ड पार्ट इज के द परसेंटेज जो हाईएस्ट है वो है यूथ. सो आई थिंक दे शुड लुक अप टू पीपल लाइक निरंजन. So, advice. So, I think I'm still very young to give advice, but I'll just give a guidance, suggestion. So, basically, अपने आप के लिए, just for yourself, to do any activity, active activity, 40 मिनट से 1 घंटा निकाल लीजिए. नेक्स्ट, रिसर्च अबाउट फूड. यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे कोचेस है, बता देंगे रील्स में या फिर शॉर्ट्स पे. Look up to that. If you see, like Vispy sir mentioned, Western, they eat more of meat and less carbohydrates. And carbohydrates कौन सा खाते हैं? They eat corn, Yes, sweet potatoes. sweet potatoes. Those are better, carbohydrates, rather than just simple, जो हम लोग खाते हैं, simple carbs, which is rice. अरे पैकेट फूड खाते हैं. Yeah, and processed food is your enemy. Processed Yeah. food, like they are your enemy. So अगर आप कुछ वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, you're not spending your calories and you're eating all those, you're going to get obese, you're going to get unhealthy. See, I'm a very big foodie. I eat everything what I see in my eyes, but I do. If you just scroll through my reels, you'll see me eating also. I love to eat a lot of food, and I eat in a huge quantity. Burgers, fried chicken, everything. You have to spend your calories. Calories Yeah. are like your, think it like a money, like money. Yeah, You spend absolutely. it. You gotta spend it. You walk, you run, you do something. That's why I said like 40 minutes to 1 hour. You need something to do, some active activity. जो प्लान है मेरा, उसमें ऑफ कोर्स आई विल बी टीचिंग देम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोर्स, आई विल बी टीचिंग देम विद अ न्यूट्रिशन कोर्स एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स. बट जहां तक हमने स्टडी किया है, वी ऑल नो कि जितने जितने न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशंस हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोर्सेज है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी, सब महंगे महंगे लोग बेच रहे हैं. एंड इफ यू गो टू देयर रूट्स, वो कोर्स कहीं ना कहीं से कॉपी किया होता है. और कुछ नहीं होता है. थोड़ा बहुत फ्रेमिंग कर देते हैं अलग अलग, एंड दैट्स हाउ दे सेल. दैट्स देयर बिजनेस, व्हिच इज फाइन. आई हैव नो इश्यूज, बट आई वांट टू एम्पावर पीपल. आई वांट टू मेक श्योर कि एथलीट्स अच्छे से सर्टिफिकेशन ले, अच्छे से और नॉलेज ले. जैसे कि निरंजन, ही ऑलरेडी नोज अबाउट इट, पर उसको नॉलेज फाइन ट्यून अगर हो जाए तो ही कैन हेल्प मेनी पीपल अंडर हिम गेट हेल्दियर. That is the main idea, and इसीलिए I am coming up with these courses with a minimal cost, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एथलीट मना करेगा, पर उसके लिए बस थोड़े दिन वेट कर लो. सो प्रिपरेशन कैसी रही थी?
I mean, when I'm training like normally, like there's no fight coming up, and I have to keep myself healthy and stay rooted to the sport. I just go to have fun. First of all, if I don't feel that there is fun in the training, I don't want to train because Yeah, you don't learn by just listening or just acting like a robot. It's nice, and you learn better when you are enjoying it. correct, So correct. I always search for fun while I'm training. That's why I mean, even like in all my trainings, I just laugh, I play with my friends, and then we train like that. That also gives me a good connection with my training partner. So even if we hit hard, sometimes it happens, then we know that it's for fun. So So Ritu, let me tell you something more about this. जैसे निरंजन ने बताया, he enjoys fighting because only a person can mention this कि he enjoys fighting. इसका मतलब कि he is thinking while he is fighting. और लोग समझते हैं कि जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है उसके ऊपर के दिमाग खाली होते हैं उनके, मतलब दिमाग खाली होता है। ऐसा नहीं है। हाँ, जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एथलीट्स हैं, दे आर वेरी वेरी शार्प मेंटली। देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू कॉम्बैट स्पोर्ट्स। बहुत ज्यादा पेन लेना होता है, बहुत ज्यादा पेन देना होता है। हम जानते हैं हम किसको क्या डैमेज कर सकते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड ऑल that's दिस true. पर्सपेक्टिव्स। That's true. सो व्हेन यू नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, दैट पर्सन बिकम्स हम्बल। वो एटीट्यूड, अननेसेसरी एटीट्यूड आपको नहीं दिखेगा। That's very true. So it was in Manipur one time. My coach, a different coach, Manipur पे. I'll not mention his name. So हम लोग का एक फेस्टिवल होता है थाबल चोंगबो बोल के, जो होली में होता है। आई मीन अभी होने वाला है। जी। सो अनफॉर्चुनेटली आई कांट बी देयर, बट हाँ उस टाइम पे क्या हुआ था, देयर वाज अ गाय हु वाज ड्रंक एंड आई वाज सिटिंग डाउन एंड हैविंग पकौड़ास। तो उसने आके बस मेरा जो खाना है उस हाथ में ऐसा खाना था, मैं खा रहा था। ही जस्ट किक्ड thinking that I was drinking on the spot. ओके। After that, I didn't say anything. I was like, "Why are you kicking my food?" Then my coach came in between, and the guy, the drunk guy, he slapped my coach. Then I got furious. I just jumped. He was like, I think 6 feet tall, like this height. I just jumped and did a elbow. He fell down right on the spot. I got so furious because he slapped my coach. या Then after that, I didn't hit anything, but like I held myself. No, you should not do it. So या that was the इट हैपेंस। only worst experience in my life that happened. Where I had to use my martial arts knowledge. I didn't want to use on anyone. So करेक्ट। अरे जाने दे, जाने दे। लेट्स टॉक अबाउट निरंजन टुडे। अच्छा निरंजन, जी। सो देर आर एथलीट्स जो इंडिया से उभर के आ रहे हैं। अंशुल है, उवैस अहमद है, दे आर कमिंग अप लाइक एनीथिंग इन इंडिया, Hmm. और But अच्छा I नाम भी mean, कर रहे हैं। even we are also following them. या They are our inspiration. करेक्ट, करेक्ट। सो ये इंटरनेशनल फाइटर्स वर्सेस इंडियन एथलीट्स जो एमएमए में आना चाहते हैं, Hmm. मेजर डिफरेंस कुछ आपने ऑब्जर्व किया है, क्या है? Training partners, They don't get training partners in India, right? they get, but this, I mean, for me, Abhi, maybe I'm stuck in a level. Yeah. I want to improve. That's why I'm planning to move to Thailand. Okay. So everybody does that. Yeah. But Thailand is cheaper for us. Yeah. Uh, I want to go to Europe. I want to go to US, but it's Very hella expensive. expensive. So Yeah. I can't afford it. Yeah. So Thailand is the best option in that. That's why And people mostly all go the there. athletes come and train there. Yeah. Yes. So I think that's why like we tend to like after we reach a certain point or level, we want to explore more.
करेक्ट. एंड देयर आर स्काउट्स जो थाईलैंड में घूमते रहते हैं और जी फाइट नाइट्स देखते रहते जी हैं. यू गेट चांसेस फ्रॉम देयर टू. जी. That's what I'm hoping, I get sponsored there. Yeah, I don't yeah, know. yeah. It's all about, how I have to go first. So April is Wish what you I'm thinking. So wish you all the good luck for the thank same. you, sir. Thank you. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इंडिया में स्पॉन्सरशिप कॉम्बैट स्पोर्ट के लिए मिले. अगर क्रिकेट हो तो मिल जाएगी आपको. आई डोंट नो व्हाई. ओके, ऑलरेडी बहुत पैसा है उसमें, पर उसमें आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, मिल जाएगी. उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी हो, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी. पर यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हो कॉम्बैट स्पोर्ट तो नहीं मिलेगी. सो माइंडसेट नहीं है. सो एंड आई मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को कि कॉम्बैट स्पोर्ट एक ऐसी स्पोर्ट है जो अगर बच्चा ट्रेनिंग करे तो ओवर एंड अबाउ द मेडल्स एंड ओवर एंड अबाउ द फाइट्स और व्हाटएवर, वो रास्ते पे अपने या अपने किसी और की जान बचा सकता है. वो क्रिकेट खेलने से, बैडमिंटन खेलने से, टेनिस खेलने से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्पोर्ट्स, आई लव देम, बट वो बच्चे ऐसे नहीं हो सकता है. इट हैज टू बी अ कंपल्सन एज फार एज मार्शल आर्ट्स इज कंसर्न इन इंडिया. Hmm. सबको सीखना चाहिए. फिर भी अपने यहाँ उतना अवेयरनेस ही नहीं है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंस है. एंड दैट इज व्हाई दीज एथलीट्स स्ट्रगल, इवन आई स्ट्रगल. Hmm. Okay, so I every year we do nationals. Every year I have to go out searching for sponsorships for Hmm. nationals, but it's difficult. ये अभी जो बच्चे साइकोलॉजिकली वीक समझते हैं ना हम लोग, कि थोड़ा बहुत हो, they don't want to listen to no's, they don't want to listen to failures, they don't want to experience failures. वो सब कैंसल हो जाएगा if they train in martial art forms. That's true. That's true. I think sir is a living example, and well, I'm also doing that. So ये जो स्कूल में बहुत बार स्पीचेस होती है टीचर्स की, प्रिंसिपल के, हार जीत तो होती रहती है, पर वो हार जीत सिखाएगा कौन उनको? mm, जब तक ये स्पोर्ट्स, ऐसी स्पोर्ट्स करेंगे नहीं बच्चे, उनको समझ ही नहीं आएगा. both, because हर जगह there are so many athletes. They're working hard. They're working smart. But once you enter the ring, it's all your mind. If you're calm, if you're composed, you can do what you think. So I have seen a lot of, in my friend circle who are MMA athletes. They do well in the gym. They do well while we टेक्निकली spar. बहुत साउंड होते हैं. Very, very good. But या once they enter the ring, they forget everything. या They know. So mentality training is as important as physical training, and no one will teach you that. You have to teach yourself. You have to learn from your failures, and winning after you fail is the most, uh, satisfying win. I told सो you I इट्स have लाइक, lost for 2 years, and after that 2 years, my like career just skyrocketed from here. I had a 17 win streak, and then like it was phenomenal. Like I never ग्रेट. thought I will get that, but because I lost so much and I had so much pain in my heart. आई थिंक दैट हैज हेल्प यू. Yeah. ग्रेट. So निरंजन, गुड लक. आई थिंक वी विश टू सी यू मोर at the world level charts, mhm. and very soon I'll be trying to meet you also. Sure, sir.